Participants, thank you for joining in today on the session of the Allied Laws. Today we have with us Gupta ji, R.K. Gupta ji. He has in the past and he has been the guiding force for the conducting of the whole session. Like he was the one who suggested us in moving forward with conducting the valuation exam. So we thought of taking the guidance and blessings of him so that he can also guide the participants in the allied laws. He also conducts session on the insolvency and bankruptcy code. And now today we will be understanding the allied laws that we have left from the last session. So over to you, Gupta ji. Thank you very much, CA Manas Chugji. And all the kudos to CA Affinity, who is organizing these revisionary sessions on valuation. If you miss some of the sessions, or if you are interested in taking up that limited insolvency examination, so video lectures of 70 hours are available on my YouTube channel. Some of you are regular subscribers to it already. In the past also we have had lectures on valuation, and those video lectures are also available on valuation. PPTs regarding IBC material and valuation material is also available on my website, and website is very easy to remember: carkgupta.com, www.carkgupta.com. And in the past 1 year I have got more than 1 lakh hits on my website, and that is due to basically downloading of the material by the participants. So without wasting much time, let us see this securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002. Surface C. So S stands for securitization, A stands for and, R stands for reconstruction, F for financial, A for assets, enforcement E, security S, and interest. There is a spelling mistake, it seems here. तो ये डबल लगा दिया. Interest Act 2002. What is this act actually? If I want to tell you this act in just 2 minutes, what is this act? Banker is giving loan to a person, whether it be a company or an individual. The individual is offering security. So this act restricts itself to only those loans which are backed by a security. This is one first fundamental. So unsecured assets are not covered. Number one. Number two, if everything goes fine, that's okay. But if there is a default in payment of the loan, then what option banker has? The banker can naturally enforce the security which was provided to him by the loanee. Now, the function of bank is not to buy and sell and those securities. It is bankers are not equipped for such things. So what banker can do? Banker can engage a third party which is regulated and transfer that security to that party. That is basically asset reconstruction company. Now that asset reconstruction company may either sell it, or it can carry on the business for some time till it finds a buyer. But asset reconstruction company, what will be the source of funding for that asset reconstruction company? That asset reconstruction company will issue scrips, and those scrips will be issued to qualified buyers only. So there is a concept of qualified buyers also. And the money which the asset reconstruction company is getting, it is giving it to banker.
because it is a cycle. So the earlier money might be utilized to pay off the banker, and security might be enforced later. This is the brief. And another thing, another important thing here is the concept of registry. The security which has been created in favor of the bank, it has to be registered with that registry. SARSAI it is called. So that registry, only those assets which are registered there, only in respect of those assets, this procedure is available. Why? Because like in case of MCA, if you want to enforce a charge, first it has to be created. Similar is the concept here. So how these asset reconstruction companies are being regulated? RBI is regulating them. How their management is done? How bankers issue notice? How they take care of the security? They take charge of the security. How police help is taken in case there is a resistance, and what is the role of that registry? So these are the various pillars on which this whole gamut of securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest is done. Securitization. What does securitization stand for? Securitization basically stands for issue of scrips by ARC. Reconstruction. Reconstruction might be before selling, how that asset is reconstructed. And enforcement of security interest, that is basically done by the banker, because the charge is available to the banker initially. Now let us see and understand the act in detail. So just in 5 minutes I have tried to briefly explain to you, because if you understand the story, if you have got the story, then it will be very easy for you to understand this act. So the act which regulates securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest and provide for a central database of security interest. So this was what I was referring to, central database of security interest created on property rights. This is called the SARFAESI Act 2002. It extends to the whole of India. It came into force on 21st day of June 2002. What was the background behind this? As you know, in US there was a case of Lehman Brothers. Lot of defaults were there. So the government of India also became apprehensive, and they brought this act by way of an ordinance. So first of all it was brought as an ordinance, and then it was passed as an act. And an asset reconstruction company, what is the asset reconstruction company? So that is the company which is reconstructing the financial assets taken from the bankers. So asset reconstruction company, there is some minimum requirement, minimum net owned funds of not less than 2 crores or such higher amount as the Reserve Bank may by notification specify, and Reserve Bank has specified it to be 100 crores by March 2019. Initially it was 2 crores, then it was enhanced to 100 crores. This is the reference where it was there, because in Act you might find 2 crores, then you will be searching how it is 100 crores. So I have given the link here itself, and this PPT will be shared with you, and this PPT is also available on my website. An asset reconstruction company aggrieved by the order of cancellation of, now as we know, this asset reconstruction company is being regulated by RBI, and naturally it works after issue of certificate by RBI. And if there is some infringement and that cancellation of its registration is done and the ARC feels aggrieved, so I will refer it to as ARC from now on. So ARC, if it feels aggrieved by the order of cancellation of certificate of registration, may prefer an appeal within a period of 30 days
from the date on which such order of cancellation is communicated to the central government. An asset reconstruction company may acquire financial assets of any bank or financial institutions. I have already explained it to you, the procedure. नीलम ये दरवाजा बंद कर लो यार, बार बार बोलना पड़ेगा क्या? By issuing. So how will it do it? How it will acquire the financial assets? Because it requires funds. How those funds will be acquired? By issuing a debenture or bond. I referred to it as scrips initially. So by issuing a debenture or bond or any other security in the nature of debenture for consideration agreed upon between such company and the bank or financial institution. Because ARC also here is for business. So naturally ARC will either issue it. Suppose the security value is 100 crores. It also has to incur some expenses. So it might issue debentures or bonds as per mutually agreed terms, because those might be even payable after some time. So based upon the terms and conditions will be agreed to between the bank and the asset reconstruction company. And by entering into an agreement with such bank or financial institution for the transfer of such financial assets to such company, all such terms and conditions as may be agreed upon between them. So it will issue debenture or bond, and then it will enter into an agreement with bank for the transfer of such financial assets to such company. So there are two stages. The asset is transferred to the bank, and the asset reconstruction company is issuing bonds or debentures or any other scrips. An asset reconstruction company may, for the purpose of asset reconstruction. So one word in this surface is R. So what does R stand for? Reconstruction. So how it will do reconstruction? Proper management of the business of the borrower. We have read the concept of going concern in case of IBC. So proper management of the business of the borrower by change in or takeover of the management of the business of the borrower. The sale or lease of a part, or so it can give it on lease. It can itself run on the business. It can reschedule the payment of debts payable by the borrower, because borrower may request for a moratorium. Any asset reconstruction company registered under Section 3 may act as an agent for any bank or financial institution. So it can act as an agent also for any bank or financial institution for the purpose of recovering their dues from the borrower on payment of such fees or charges, because naturally it is also doing business. So it will have some fees or charges as may be mutually agreed. It can act as manager also, referred to in Section 13(4)(c). Section 13(4)(c) basically is enforcement of security interest on such fees as may be mutually agreed. 13(4) we will read in detail. It can act as a receiver also if appointed by any court. So these are the basic functions of ARC. Now, where on audit or inspection RBI is satisfied that business is not being conducted properly, then it will do? It will by an order remove the chairman or any director of asset reconstruction company. It can appoint additional directors, because it is ARC is basically regulated by RBI. So it can appoint additional directors. It can appoint any of its officers as an observer. Notwithstanding anything contained in Section 69 or 69A of the Transfer of Property Act, any security interest created in favor of any secured creditor may be enforced without the intervention of the court or tribunal, because Transfer of Property Act also contains certain provisions. Now that property is basically in the name of the borrower. It has been mortgaged to the banker. Now how this ARC will enforce that security interest? What if the borrower goes to the court that, my lord, there was no prior agreement? How this ARC comes into picture? I took the loan from the bank. If I do not pay loan to the bank, then banker can enforce. How this ARC is coming into picture? So this may be enforced. This is by virtue of this clause. So it may be enforced without the intervention of the court or tribunal, and normally no stay is granted. Where any borrower who is under liability to a secured creditor
under a security agreement makes any default in repayment of secured debt or any, and the word here is secured debt, because unsecured debt में तो होगा ही नहीं ना, इनसिक्योर्ड डेट में तो एनफोर्स ही कैसे करोगे आप. सो इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड डेट्स. तो क्या हो रहा है इसमें, where any borrower who is under a liability to a secured creditor under a security agreement makes any default in repayment of secured debt or any installment and his account is classified by the secured creditor as non-performing asset. So this is one of the important conditions. Before taking any action, you have to classify it as NPA. Then the secured creditor may require the borrower by notice in writing. So another condition, notice in writing. उसको बोलेगा भैया तुमने लोन लिया था, पेमेंट नहीं किया, यू डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी इन फुल विद इन 60 days. 60 days period is also important. So what is the procedure? First, you classify the account as NPA, you issue a notice and you ask him to pay up within 60 days from the date of the notice. Failing which, the secured creditor shall be entitled to exercise all or any of the rights under section 13(4). So if you do not pay up within 60 days, then we will exercise the security. Next, classification of advances as NPA is not necessary in the following cases. Normally it is necessary. What is the exception? Borrower who has raised funds through issue of debt securities. So if it is a debt security, then suppose you have issued some debentures, then in that case it is not necessary classification as NPA. If you have granted a loan, then classifying as NPA is necessary. If on receipt of the notice under section, this notice is issued under section 13(2), the borrower makes any representation, or suppose borrower makes any representation, my lord, this notice was issued, I am regular in my payment, how you can issue me this notice? The borrower makes any representation or raises any objection, this secured creditor shall consider. So it is imperative for him to consider such representations or objection, and if the secured creditor comes to the conclusion that such representation or objection such representation or objection is not acceptable or tenable, he shall communicate within 15 days of receipt of such representation or objection the reason for non-acceptance. So he has to communicate the reasons also. First of all, he has to consider the representation. He may or may not agree to the representation or objection, but he has to communicate the reasons also, and there is a specified time period of 15 days. So while studying the SARFAESI Act, we have already seen some of the questions. A question might come on the net owned assets of the company. What is the limit? Earlier it was 2, now it is 100. Then 3-4 more important things. That 60 days notice is required. First of all, you have to classify the account as NPA. RBI may exercise certain powers in respect of this conduct of the asset reconstruction companies. Borrower has the right to raise an objection, and the creditor is required to consider, but it may find it acceptable or not. Then, but still he has to communicate within 15 days. He has to revert within 15 days of receipt of such representation or objection the reason why he is not accepting. In case the borrower fails to discharge the liability in full within the period, in full is also important. ऐसा नहीं कि वो पार्ट पेमेंट कर दे, यहाँ पर भी, यहाँ पार्ट नहीं है, यहाँ तो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(2). 13(2) में क्या पीरियड दिया हुआ है? 60 days. द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे टेक रिकोर्स टू वन और मोर द फॉलोइंग. अब आपने नोटिस दे दिया 13(2) में 60 दिन का, पहले एनपीए डिक्लेयर कर दिया, 60 दिन का नोटिस दे दिया, 60 दिन में भी उसने पेमेंट नहीं की, या मान लीजिए पूरी पेमेंट नहीं की, 100 करोड़ देना था, उसने कहा जी 10 करोड़ ले लो, बाकी बाद में ले लो, तो भी एक ही बात है. वो क्या कर सकता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या कर सकता है? He can take possession of the secured assets of the borrower, including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured assets. ठीक है, पोजेशन ले सकता है, फिर उसको बेचे, ट्रांसफर करे, लीज करे, असाइनमेंट करे, जो मर्जी करे. मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है. He can appoint any person hereinafter referred to as the manager
to manage the secured assets, the possession of which has been taken over by the secured. Now a question might be coming to your mind कि यहाँ पर ये secured creditor क्या है? Secured creditor कौन हो सकता है? बैंकर भी हो सकता है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड यहाँ पर दिया उन्होंने, secured creditor, ठीक। आगे चलते हैं। Where the management of the business of a borrower being a company as defined in companies is taken over, तो उस केस में क्या होगा भाई, कंपनी में भी तो कंपनी ने लोन लिया हो, अब उसको बिजनेस आपने टेक ओवर करना है, उसके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में जो मर्जी लिखा हो, सबसे पहला शेयर होल्डर जो है वो कोई इसकी डायरेक्टर को अपॉइंट या नॉमिनेट नहीं कर सकते। द पावर ऑफ द शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट और नॉमिनेट एनी पर्सन टू बी ए डायरेक्टर इज फिनिश्ड, इट शैल नॉट बी लॉफुल, पहला। दूसरा, अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो उसका भी इफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर अप्रूव ना करे, ठीक है। वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर अब बन गया उसका इंचार्ज, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आईबीसी से भी अगर कोरिलेट करें तो वहां पर क्या होता है, वहां रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाता है या लिक्विडेशन में लिक्विडेटर आ जाता है। यहाँ कौन आ रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। एनी पर्सन, वहां पर भी बोर्ड की पावर सीज हो जाती है। एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर एग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द मेजर्स रेफर टू इन सेक्शन 13(4). 13(4) में हमने पढ़ लिया क्या क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सब कर सकते हैं। तो अगर इफ ही फील्स एग्रीव्ड तो क्या करेगा, ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू द डीआरटी, ठीक है। तो यहां पर डीआरटी में एप्लीकेशन जा सकती है। जब वो 13(2) में नोटिस भेज रहा है उस टाइम डीआरटी में एप्लीकेशन नहीं लग सकती, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले टेक ओवर होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन लगेगी। 13(4) का एक्शन होने के बाद में, 13(4) का एक्शन होने से पहले नहीं लगेगी, ठीक है। 13(4) में क्या कर सकता है, उसके बाद में डीआरटी में ये एप्लीकेशन लगा सकता है विद इन 45 डेज, ठीक है। इससे पहले हमने एक पीरियड पढ़ा था 30 डेज, वो क्या था, 30 डेज में ये था कि भाई अगर एआरसी कंपनी फील्स एग्रीव्ड बाय वे ऑफ कैंसलेशन तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है इन अपील, बाय वे ऑफ अपील, ठीक है। अब हम यहाँ क्या पीरियड पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं 45 डेज। तो 45 डेज में दे कैन अप्लाई टू this DRT. An application against measures to recover secured debt under section 17(1) shall be filed before the DRT within the local limits. Now, which DRT? Because DRT तो बहुत सारी हैं, ठीक है। I think more than 40 के करीब है, 39-40 है, काफी है। तो इसका जुरिस्डिक्शन कैसे होगा, एक, हाँ गर्ग साहब मेरी मीटिंग चल रही है, बाद में करते हैं आराम से, ओके। तो an application against measures to recover secured debt under section 17(1) shall be filed before the debt recovery tribunal within the local limits of whose jurisdiction. पहला, एक तो जब कॉज ऑफ एक्शन जहां पर आया, कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, होली और इन पार्ट। कॉज ऑफ एक्शन में लोन लेना भी हो सकता है, ठीक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है। दूसरा बात कहता है जहां पर सिक्योर्ड एसेट लोकेटेड है, ठीक है, जिसकी सिक्योरिटी पर लोन लिया था वो जहां लोकेटेड है वहां पे ट्रिब्यूनल में भी आप जा सकते हो। यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या ब्रांच या एनी अदर ऑफिस ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर वो अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, बैंकों में क्या है भाई, हर एक बैंक तो, हर एक ब्रांच तो इक्विप्ड नहीं होती, तो नॉर्मली वो हेड ऑफिस के थ्रू दिलवाते हैं लोन, ठीक है। अब आपको पता चल गया हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस के थ्रू क्यों दिलवाते हैं, वो इसीलिए दिलवाते हैं कि वो लोग एक्शन करने के लिए इक्विप्ड होते हैं। हर ब्रांच में तो ये हो नहीं पाएगा, तो कहता है ब्रांच और एनी अदर ऑफिस ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेनिंग एन अकाउंट इन विच डेट क्लेम्ड इज आउटस्टैंडिंग। दूसरा, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डीआरटी मे प्रेफर एन अपील टू अपीलेट। डीआरटी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ बंदा, यहां पर क्या बात आ गई, एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब दोनों पार्टी जा सकती। डीआरटी में पहले कौन गया, डीआरटी में देखिए एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर, ठीक है। एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर में क्या मतलब, भाई ऐसा है कोई और भी आदमी हो सकता है। कई बार क्या होता है जिसको एसेट सेल किया वो भी जा सकता है उसमें, ठीक है ना। तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर, ये तो हो गया डीआरटी का, यहाँ पर 45 डेज था। उसके बाद में अब डीआरटी का ऑर्डर आ गया, उसके बाद में एनी पर्सन आ गया यहाँ पर, तो वहां पर बोरोवर की बात नहीं रही, इंक्लूडिंग बोरोवर, तो यहाँ पर एनी पर्सन।
तो वो इसमें ये एपिलेट ट्रिब्यूनल में कितने दिन की है लिमिट? 30 डेज की फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीआरटी। अब आपको एप्लीकेशन करनी है तो आपको 50% जो अमाउंट है वो आपको जमा करवाना है। 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द बोरोवर एज क्लेम्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और डिटरमिन्ड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इतना जमा कराना 50%। वो कहता है भाई कई बार ये डिले टैक्टिक ना हो ना, ताकि भाई आपका 100 करोड़ का लोन था, 100 करोड़ के लोन में 50 करोड़ जमा करा दो। अब डीआरटी ने जब फैक्ट्स देखे, डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया, उसने कहा कि भाई ये 100 करोड़ नहीं है, ये तो इंटरेस्ट वगैरह इन्होंने पेनल इंटरेस्ट पता नहीं चार्जेस लगा रखे हैं, ये 100 करोड़ तो नहीं बनता, 90 करोड़ बनता है। तो आपको क्या करना है? और डिटरमिन्ड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विच एवर इज लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, 100 करोड़ का तो 50 हो गया, उसने 90 का, तो आप 50 जमा कराना आपको। ये नहीं कि उसका भी 50% कराना। 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द बोरोवर और डिटरमिन्ड। अब ये देखिए 50% दोनों के साथ है या एक के साथ है, वो भी देखना है आपको। ठीक है, इस चीज को आप ढूंढिएगा। उसमें एक्ट तो मेरे पास है नहीं अभी, तो ये आप नहीं तो देख के बताइए कि 50% के किसका है। भाई एक इसमें क्वेश्चन क्या है, 100 करोड़ का लोन था, 50 ये तो कह रहा है 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू या डिटरमिन्ड बाय द डेट रिकवरी। वैसे तो नेचुरल ऐसे कॉमन सेंस से तो लग रहा है कि दोनों केस में 50 होना चाहिए, अदरवाइज वो तो हमेशा ही ज्यादा होगा फिर। एनी बोरोवर रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ J&K। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तो J&K में वो जो है ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, अब जब ये 370 आने के बाद में क्या हो गया, तो अभी भी वहाँ ट्रिब्यूनल बना है कि नहीं बना, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उससे पहले तो ये पोजीशन थी कि वहाँ पर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और वहाँ पर 30 डेज में एप्लीकेशन लगती है डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटअप है रजिस्ट्री, ये मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल रजिस्ट्री बनाएगी। उस सेंट्रल रजिस्ट्री में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सिक्योरिटाइजेशन की भी, रिकंस्ट्रक्शन की भी। सिक्योरिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सिक्योरिटाइजेशन में आप डेट इश्यू कर रहे हो, मतलब सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं, एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो ये सारी ट्रांजैक्शन होगी। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेटेड पावर्स एंड फंक्शंस अंडर चैप्टर 4 इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन। ये रजिस्ट्री की पावर भी किसको दे दी, आरबीआई। ठीक है, तो रजिस्ट्री भी कौन कंट्रोल कर रही है, आरबीआई, और जो एआरसी है उसको कौन कंट्रोल कर रही है, आरबीआई। आगे, द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री शैल हैव द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रिएशन। तो ये इसका ये काम है। ठीक है, अब इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन और अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब किसी ने कॉन्ट्रावेंशन किया सरफेसी एक्ट के जो भी हैं प्रोविजंस या रूल्स, उसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर तक, या फाइन, या बोथ। ठीक है, अब अगर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेयर एनी एआरसी और एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई, ठीक है, अंडर द सरफेस एक्ट, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी पावर दी गई है। पहली पावर किसको है, वो आरबीआई की बात कर रहा है। पहली तो जनरल कॉन्ट्रावेंशन है, उसके बाद में दूसरी आ गई कि वेयर एनी एसेट, यहाँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात है। पहला है पर्सन की, तो पर्सन के केस में 1 ईयर या फाइन या बोथ। एआरसी में है या एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई, तो उस केस में क्या होगा, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पावर है, इट में इम्पोज ऑन सच कंपनी और पर्सन इन डिफॉल्ट, तो पेनल्टी लग सकती है नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच फेलियर वेयर सच अमाउंट इज क्वांटिफाइबल। ठीक है, विच एवर इज मोर। ठीक है, और अगर फेलियर कंटिन्यूइंग 1 है तो फर्दर पेनल्टी है 1 लाख रुपीज ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूस। ठीक है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में। और ये जो प्रोविजंस ऑफ सरफेसी है किस पर अप्लाई नहीं होंगे, लियन आपने दिया हुआ है, या मनी या सिक्योरिटी है गिवन अंडर बाय और अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन्वॉल्व। मतलब बेसिकली आपने कोई सामान बेच रखा, ठीक है ना, तो उस केस में कोई लियन क्रिएट किया, बेलमेंट है, प्लेज है, वो उस पर लागू नहीं होंगे। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें भी नहीं होगा। और एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन,
आपने 100 करोड़ का लोन दिया था, अब वो 20 से भी कम रह गया, 20 लाख से भी कम रह गया, तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कम से कम 80% आपका ड्यू होना चाहिए, तभी आप एक्शन ले सकते हो। मतलब 20% से ज़्यादा ड्यू होना चाहिए, 20 या 20 से ज़्यादा। अगर लेस देन 20 हो गया तो भी नहीं आप ले सकते, एग्रीकल्चरल में नहीं ले सकते, और कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, सेल ऑफ गुड, ये 3 एग्जम्पशन है। आगे देखते हैं। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई फॉर एनीथिंग डन और omitted टू बी डन इन गुड फेथ अंडर द सरफेस एक्ट। तो कुछ सर्टन इम्यूनिटी इज ऑल्सो ग्रांटेड। किसको दी? रिजर्व बैंक को, अपने को ही देंगे। ठीक है ना, रिजर्व बैंक को दे दी इम्यूनिटी, भाई तुम्हारे से कोई गलती हो जाए तुम पे नहीं लगेगी पेनल्टी, सेंट्रल रजिस्ट्री पे नहीं होगी। एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर और नहीं ऑफिस ऑफिसर, तो बैंकर है या जो ARC वाला है या उसके ऑफिसर्स। ठीक है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जिसमें DRT या एपेलेट ट्रिब्यूनल की पावर है। ठीक है, तो कोई भी सिविल कोर्ट इसमें एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी सूट या प्रोसीडिंग। Secured creditor shall be entitled to take all or any of the measures under section 13(4) provided his claim in respect of the financial asset is made। अब 13(4) में पोजेशन की पावर दे रखी है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने बता दिया बैंकर भी है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। तो लेकिन वो एक्शन की क्या क्या उसके लिए पैरामीटर्स हैं फॉर टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 13(4)। सबसे पहला, एक तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द सरफेसी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। तो सरफेसी एक्ट जो है या रूल्स जो है, इसके अलावा इन एक्ट्स को भी देख लेना थोड़ा थोड़ा। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ लेना, सेबी एक्ट भी पढ़ लेना और RDB एक्ट भी पढ़ लेना। ठीक है, और ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? ऑथराइज्ड ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर not less than a chief manager of a public sector bank or equivalent as specified by the board of directors। तो authorized officer कौन है? चीफ मैनेजर या इक्विवेलेंट। आगे देखते हैं। How the services of demand notice as referred to in section 13(2) of the Surface Act shall be made। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? NPA डिक्लेयर करो, 60 दिन का नोटिस दो। अब ये नोटिस देना कैसे है? आप हैंड डिलीवरी भी दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट विद AD दे सकते हो, स्पीड पोस्ट भी या कोरियर भी या एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइक फैक्स मैसेज, ईमेल वगैरह। ठीक है, अगर कंपनी है तो कहाँ दोगे नोटिस? रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी ब्रांच पे। ठीक है, एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 3(1)। तो रूल दे रखा 3(1), तो कैसे वेयर द पोजेशन बाय द सिक्योर्ड एसेट टू बी टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई जो आपने पोजेशन लेना है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है सपोज। ठीक है, इन पोजेशन ऑफ द बोरोवर। ठीक है, द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल टेक पोजेशन ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी। कार है मान लो, तो कार की कीज ले लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस आफ्टर ए पंचनामा ड्रॉन एंड साइंड बाय द विटनेसेस। ठीक है, कोई ऑडी कार है तो उसका चाबी ले लेगा, उसके लिए क्या पंचनामा बनाएगा और 2 विटनेसेस होंगे उसमें। आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ मूवेबल सिक्योर्ड एसेट एंड इन एनी केस बिफोर सेल द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल ऑब्टेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द movable secured asset and thereafter if considered necessary fix in consultation with the secured creditor the reserve price of the asset to be sold in realization of the dues of the secured creditor। आपने ऑडी कार इंपाउंड कर ली, आप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकलवाओगे और उसके बाद कंसल्ट करोगे विद सिक्योर्ड क्रेडिटर के रिजर्व प्राइस क्या होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होने पौने दाम में भेज दो। The authorized officer may sell the movable secured asset taken possession under Rule 1 in one or more lots to secure maximum sale price for the set to be sold by adopting any of the। बेचना कैसे? कोटेशंस मंगाओ आप। ठीक है, कोटेशन कौन सी पार्टी से मंगानी है? जो उन सिक्योर्ड एसेट्स में डील करती है। मान लो कार है तो कार डीलर से कोटेशन मंगाओगे आप, मशीनरी है तो मशीनरी के डीलर से कोटेशन मंगाओगे, और अदरवाइज इंटरेस्टेड इन बाइंग टेंडर्स बुलाओ, पब्लिक ऑक्शन करो, ऑक्शन करो, प्राइवेट ट्रीटी भी कर सकते हो। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ सेल दे देंगे उसको, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है भाई ऑथराइज्ड ऑफिसर। उसमें क्या रहेगा? उसमें ये रहे भाई, जो नया बंदा खरीदेगा उसको भी तो कुछ पेपर चाहिए ना, उसको पेपर आप क्या दोगे? सर्टिफिकेट ऑफ सेल दोगे, और उसमें क्या रहेगा? स्पेसिफिकेशन रहेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, प्राइस पेड कितना है, नेम ऑफ द परचेजर कौन है, और जो पोजेशन नोटिस है ऑफ द सिक्योर्ड इमूवेबल एसेट शैल बी पब्लिश्ड
by the authorized officer as soon as possible, but in any case not later than 7 days from the date of taking possession. आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए यहाँ पर पेपर में नोटिस देना है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या है कि वहां नोटिस देना जरूरी नहीं है, पेपर में, ठीक है। आप पब्लिक ऑक्शन कर सकते हो या जो भी जिस तरह से डिफरेंट मोड्स हैं इन कंसल्टेशन विद सिक्योर्ड क्रेडिटर, दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। अब मूवेबल एसेट्स के लिए अलग और इमूवेबल के लिए अलग। तो इमूवेबल में आपको क्या करना है, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में देना है। एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का होगा जो जिसका सफिशिएंट सर्कुलेशन होगा। रिजर्व प्राइस आपको करना है, फिर कोटेशन टेंडर्स वगैरह इन्वाइट करने, तो चीजें जनरल है, ठीक है। द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी under the SURFACE rules in first instance shall take place before the expiry of 30 days from the date on which the public notice of sale is published in newspaper। तो जैसे मान लो आपने 1 तारीख को न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश किया, तो विद इन 30 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज आपको ये क्या करनी है, फर्स्ट बार सेल कर देनी है। पहली बार हो सकता है ना बिके, ठीक है। आपने कहा जी पब्लिक ऑक्शन होगी या जो भी होगा, तो फर्स्ट इंस्टेंस सेल इन फर्स्ट इंस्टेंस वो कब होनी है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ऑन एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर शैल इमीडिएटली, उसको क्या करना है, 25% तो इमीडिएटली जमा करा देना, ठीक है। विच इज इंक्लूसिव ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड इफ एनी। हो सकता है आपने टेंडर में रिक्वायरमेंट की हो, भाई 10% आप अर्नेस्ट मनी रिजर्व कराओ, ये इसका रिजर्व प्राइस है, उसका 10% आप पहले दे दो ताकि सीरियस बायर्स ही आए। If any, to the authorized officer conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall be sold again, ठीक है। 25% तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली है, सेम डे और नॉट लेटर देन नेक्स्ट वर्किंग डे आपको 25% जमा कराना है। अगर वो 25% भी नहीं जमा कराता तो उस केस में क्या होगा, फिर दूसरे को प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो। The balance amount of purchase price payable shall be paid by the purchaser to the authorized officer on or before the 15th day of confirmation of sale। तो आपको 15 दिन के अंदर या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड एग्रीड होगा बिटवीन द परचेजर एंड द सिक्योर्ड क्रेडिटर, इन एनी केस नॉट एक्सीडिंग 3 months, तो मैक्सिमम 3 months का पीरियड है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने मोटा मोटा आपको, मैं आई डेलिबरेटली वेंट स्लो ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है। ये है हमारा सरफेसी एक्ट, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन है, बोरोवर है। बोरोवर को हम ऑब्लाइजर भी कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्लाइजर कौन है। ये तो भैया इसने एहसान किया, ऑब्लाइज तो कहते हैं ना एहसान, तो इसने तो एहसान किया, लोन ले लिया तो एहसान ही तो किया। लेंडर कौन है, ये ओरिजिनेटर है। भाई ट्रबल तो इसी ने ओरिजिनेट की, इसी ना ये लोन देता ना ये सरफेसी एक्ट हमें पढ़ना पड़ता। तो ये ओरिजिनेटर कौन है, ये ओरिजिनेटर ऑफ प्रॉब्लम है, लेंडर, ठीक है। और बोरोवर तो ऑब्लाइजर है, इसने ऑब्लाइज किया। अब बोरोवर ने क्या किया, इसको सिक्योर्ड एसेट्स दी, ठीक है, सिक्योरिंग एसेट्स। और लेंडर ने क्या दिया, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। द वर्ड यूज्ड हियर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये लेंडर क्या करेगा, लेंडर ये करेगा, इस अपनी प्रॉपर्टी को कहेगा भाई ये कैसे है, अब ये मेरे पास कभी कार आ रही है, कभी मेरे पास मकान आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं बैंक का काम करूंगा, ये सब प्रॉपर्टी में मैं तो कबाड़ी बन गया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम ना इसको एक ARC को बेच देते हैं, कबाड़ी का काम तो कबाड़ी ही करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया, ये ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, और इधर में इसने इसको क्या किया, ARC ने इसको पैसे दे दिए, ठीक है। अब ये जो SPV बनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को या इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी रिसीट इशू कर दी, और यहाँ पर इनके पास पैसे आ गए। देखो पैसे का सर्कुलेशन जो है वो तो पैसे से ही कंप्लीट होगा, ठीक है भाई। जो मनी सर्कुलेशन है वो रुक गया, बोरोवर पैसे लेके बैठ गया, ठीक है। जब बोरोवर पैसे लेके बैठ गया तो लेंडर क्या करेगा, अब मान लो बैंक से सारे लोन ले ले और बैंकर कोई दे ना पैसे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक खाली हो जाएगा। तो जब इसने इसका मनी सर्कुलेशन रुक गया, इसने क्या किया, इसने कहा भाई ऐसा है मेरे पास, अब वो तो है नहीं, मेरे पास तो प्रॉपर्टी है। इसने प्रॉपर्टी दे दी ARC को, ARC के पास भी पैसे नहीं है। ARC ने क्या किया, ARC ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को कहा भाई देखो ऐसे है कि मैं आपको सिक्योरिटी रिसीट इशू कर देता हूँ, ठीक है, और आप मेरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो। तो इन्होंने ये सब्सक्राइब कर ली सिक्योरिटीज, और इससे जो पैसा मिला अल्टीमेटली दे कौन रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या इन्वेस्टर। इसके पास से ARC के पास आया, ARC ने लेंडर को दिया, तो ये मनी फ्लो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे तो इट इज एन एक्ट टू रेगुलेट, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं।
एक्ट ये मैटर से डील करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको कैसे याद करना है मैंने ये भी बता दिया आपको। इस एक्ट में 6 चैप्टर्स है हैविंग 42 सेक्शंस। और क्या क्या है इसमें, ये है कि एक तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हम उसको एआरसी भी बोलते हैं, है ना, कॉमन टर्मिनोलॉजी में। दूसरा रिकवरी है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल। और पोजेशन तक तो आप ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल में कब जाओगे, जब एक बार पोजेशन हो जाएगा आपका, तो उसके बाद जाओगे, उससे पहले नहीं जा सकते। उससे पहले सिर्फ एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको ना 13(2) का नोटिस आया तो यू कैन रिप्रेजेंट अगेंस्ट दैट नोटिस, और उसके ऊपर भी ना तो कोई स्टे ग्रांट होगा, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके पास पूरी पावर है उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसको रीजन देने पड़ेगा, बस इतना ही। फ्रेमवर्क है फॉर रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोरोवर्स बिजनेस, वो भी हमने देख लिया। एज ए गोइंग कंसर्न बेचो, है ना, लीज करो, सेल करो। सेंट्रल रजिस्ट्री ये हमने पढ़ लिया। क्वालिफाइड बायर्स हमने पढ़ लिए। और फिर ये सिक्योरिटी रिसीट्स। तो ये मेन इसके सेक्शंस हैं। कुछ डेफिनेशन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, एआरसी करेगी। ठीक है, और फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, लोन। लोन को क्या है इन्होंने, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब एआरसी कौन कहे, एआरसी जो है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। एआरसी इज नॉट ए बैंकिंग कंपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछ सकता है आपसे कि एआरसी, वेदर एआरसी इज अ बैंकिंग कंपनी। इट इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, ऑल्दो इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई एक चीज और भी रेगुलेट कर रहा था, क्या चीज थी वो, जो ध्यान से सुन रहे होंगे वो बता सकते हैं। आरबीआई एक तो इसको रेगुलेट करता है एआरसी को, और एक और चीज थी उसको भी रेगुलेट आरबीआई करता है, कौन सी वो, हाँ बिल्कुल सही है, सही है जी, हाँ सेंट्रल रजिस्ट्री। इसका मतलब कुछ लोग तो ध्यान से सुन रहे हैं। An ARC is not a banking company, although it is regulated by RBI. Such company cannot carry out any other business other than securitization or reconstruction. आगे देखते हैं। बोरोवर कौन है, बोरोवर वो है जिसको पैसे दिए गए, वो हैज बीन ग्रांटेड। सिंपल है। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट में मतलब ये कि एक तो आपको एनपीए देना है। दो चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, नॉन एनपीए के केस में भाई ऐसा है, जो इसने दिए होंगे पैसे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी होगी, या तो कोई लोन दिया होगा या कोई उसने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया होगा। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें 90 डेज का पीरियड है। इस केस में क्या है, आपके पास 60 डेज का पीरियड है, और एनपीए भी डिक्लेयर करना है। जबकि डेट सिक्योरिटीज में आपको एनपीए भी डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और अदर अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर विद रिस्पेक्ट टू डेट सिक्योरिटीज आफ्टर नोटिस ऑफ 90 डेज। तो यहाँ पर डेट में 90 डेज का है और एनपीए की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आगे चलते हैं। कंडीशंस फॉर कॉलिंग डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गया कैसे प्रूव करोगे, डेट और एनी अदर अमाउंट। अमाउंट ड्यू शुड बी इन द नेचर ऑफ डेट, पहली बात। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डज नॉट हैव रिकॉर्ड, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर होना चाहिए। ठीक है, डेट भी आप रिकवर कर सकते हो और एनी अदर अमाउंट भी रिकवर कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, आपको एनपीए इसको डिक्लेयर करना है। और डिबेंचर्स के लिए क्या है कि 90 डेज का नोटिस जो है वो जरूरी है। वहां पर कितना, 60 डेज का दूसरे एसेट्स में, और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में 90 डेज का। तो डेट का क्या मतलब है, अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एनी टेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर और फाइनेंशियल लीज और कंडीशनल सेल और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो डेट की एक तो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ली, ये उसमें आरडीबी एक्ट में दे रखी है। तो पहला क्या है, पहले तो मान लो आपने कोई फाइनेंशियल लीज ले रखी है। ठीक है, आपने कार ले ली बैंक से, बैंक कार फाइनेंस करते हैं, आपने ऑडी फाइनेंस करा ली। ठीक है, आपने कुछ पेमेंट करी, 2 पेमेंट करी, उसके बाद में पेमेंट ही नहीं करी। ठीक है, तो जो भी अनपेड परचेज प्राइस है वो आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, उसके बाद और एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑन एनी इंटेंजिबल एसेट और लाइसेंस और assignment of such intangible asset which secures the obligation to pay any unpaid portion of the purchase price of such intangible asset or an obligation incurred or credit otherwise extended to enable any borrower to acquire the intangible asset or obtain license of such asset। ठीक, पहला तो टेंजिबल हो गया,
अब दूसरा है इंटेंजिबल, कोई भी राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है ऑन एनी इंटेंजिबल एसेट, या लाइसेंस, आपने स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदा, ठीक है, या आपने असाइन कर दिया दूसरे को, ठीक है, और उसमें क्या हो गया, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है ना, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट में कवर्ड है डेट और रिसीवेबल्स एंड इंक्लूड्स ए क्लेम टू एनी डेट और रिसीवेबल, any debtor receivable secured by mortgage, mortgage charge, hypothecation, any right, any beneficial interest। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है, मैंने अलग से लिख दिया है, एन एसेट विच इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट कैन नॉट बी सिक्योरिटाइज, एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट। तो पहली बात तो फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है भाई, कुछ दिया होगा तभी तो वापस लोगे, आपने दिया ही कुछ नहीं तो क्या लोगे। एनी बेनिफिशियल राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी टेंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर, वो हायर के थ्रू हो, लीज के थ्रू हो, ठीक है ना, कोई लाइसेंस हो, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। एनपीए का क्या मतलब है, एनपीए जो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए बनता है, ठीक है। In case such bank or financial institution is administered or regulated by an authority or body established, constituted or appointed by any law for the time being in force in accordance with the directions or regulations, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ना ये एनपीए की डेफिनेशन बता रहा है भाई, आपने हो सकता कोई बैंकर हो सकता कोई एनबीएफसी हो, ठीक है ना, तो अगर कोई दूसरी कंपनी होगी तो वहां पर जो भी लॉ के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वो मान लिया जाएगा। In any other case, in accordance with directions or guidelines relating to asset classification issued by RBI। फिर क्वालिफाइड बायर कौन है, क्वालिफाइड बायर ये कौन है, यही अल्टीमेटली पैसे दे रहा है, क्वालिफाइड बायर से पैसे लेकर के ही मनी फ्लो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो क्वालिफाइड बायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ट्रस्टी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, या पेंशन फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इशूड अंडर सेबी, ठीक है। तो ये सारे हैं एनी कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनेंशियल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आरबीआई स्पेसिफाई करेगा कि कौन ये स्क्रिप्ट ले सकता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी आदमी ले लेगा उसको, ठीक है। आरबीआई स्पेसिफाई करेगा कौन आदमी, ये वाले कौन आदमी क्वालिफाइड बायर है। बेसिकली इसमें इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, एसएफसीज वगैरह आती है, ठीक है। नोट क्या है, in the event of non-realization of financial assets, qualified buyer holding not less than 75% security receipts shall be entitled to call a meeting of all the qualified buyers and every resolution passed in such meeting shall be binding on the company। अब वो जो बीमारी थी डिफॉल्ट वाली वो यहाँ पर भी ट्रेवल कर गई, ठीक है। इनको सिक्योरिटी तो दे दी, इनको पैसे भी तो चाहिए, वापस भी तो चाहिए इनको भाई, 5 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, कभी तो कहा होगा ना कि भाई हम आपको देंगे। अब उनको भी मान लो पैसे नहीं मिल रहे और वो जो एसेट्स था वो रियलाइज ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, जो क्वालिफाइड बायर है कम से कम 75%, नॉट लेस देन 75%, वो अपनी मीटिंग बुला सकते हैं सारे क्वालिफाइड बायर्स की, ठीक है। इनको समझ लो आप होम बायर जैसे आईबीसी से, एंड एवरी रेजोल्यूशन पास्ड इन सच मीटिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो वो जो कोई भी रेजोल्यूशन होगी वो उस कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी। आगे चलते हैं। एंड एआरसी कैन नॉट रेज फंड्स फॉर इन्वेस्टर्स विच इज नॉट ए क्वालिफाइड बायर, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, सिर्फ क्वालिफाइड बायर से ही पैसे आप ले सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब जो फाइनेंशियल एसेट लिया उसको उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी इशू कर दी, वेदर बाय रेजिंग ऑफ फंड्स बाय सच एआरसी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, ठीक है, और उनको अनडिवाइडेड इंटरेस्ट दिया है इन सच फाइनेंशियल एसेट्स और अदरवाइज, ठीक है। तो उनमें ये नहीं है कि भाई अगर एक एसेट है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिवाइडेड पोर्शन है, कोई स्पेसिफाइड पोर्शन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन हेल्प्स द एआरसी टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट लाइक लोन्स फ्रॉम बैंक्स ड्यू टू विद द एआरसी शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर, ठीक है। तो अब एआरसी किस रोल में आ गई, लेंडर के। एआरसी मतलब समझ लो कबाड़ी जैसे होते हैं ना भाई, उसका लोन का डिफॉल्ट हो गया, अब बैंक तो इक्विप्ड नहीं है उस सबको हैंडल करने के लिए, बैंक ने कह दिया एआरसी को, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कि भाई आप ये ले लो, ठीक है। तो अब एआरसी लेंडर बन गया, ठीक है। वो जो वर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर आ रहा है ना, तो इसीलिए वो आ रहा है कि एआरसी भी उसमें कवर्ड है। एंड ऑल द राइट्स ऑफ सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल वेस्ट इन सच कंपनी इन रिलेशन टू सच, जो भी मॉर्टगेज थे,
भाई बैंक के पास डेट असाइन होके आया या मॉर्गेज थी, तो वो सारे राइट किसके पास चले गए? एआरसी के पास। इसीलिए अब सिक्योर्ड क्रेडिटर को समझ लेते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी कंसोर्टियम और ग्रुप ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। और फिर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय एनी बैंक, और आपने डेट सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं, डेट सिक्योरिटीज के केस में डिबेंचर ट्रस्टी के पास वो पावर आ जाएगी। ठीक है। An asset reconstruction company, whether acting as such or managing a trust set up by such ARC for the securitization or reconstruction as the case may be। कई बार क्या होता है, ये जो ARCs होती हैं वो क्या करती हैं, वो अलग से एक ट्रस्ट बना लेती हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अपॉइंटेड बाय एनी कंपनी फॉर सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज, ये भी हमने पढ़ा था। अगर डिबेंचर्स आपके 500 से ज़्यादा अगर को आपने इशू करने हैं तो उसमें आपको डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है, कंपनी एक्ट में प्रोविजन है। ठीक है। एनी अदर ट्रस्टी होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में बैंक तो आ ही गया, बैंक के अलावा डिबेंचर ट्रस्टी भी आ गया, एआरसी भी आ गई। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन राइट, टाइटल, ठीक है ना, अपॉन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसमें मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगी, खास बात नहीं है। ए क्रेडिटर shall not be called as secured creditor, ठीक है, unless it is interest over the assets of the debtor or borrower is covered under the above definition। ठीक है, तो रेफर सेक्शन 31 प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन। हमने देख लिया था कि किन किन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, लेस देन 20% है, ये सब। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है?